Hello everyone. Today, first of all, we will read some COVID-19 appropriate behavior. Wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene, wear mask properly, stay at least 6 feet from others, wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember, do not touch your face, do not share food or drink with others. These are the appropriate behavior for COVID-19 and you all have to follow these behavior in school and in any other social places. Hello everyone. Today we will read lesson 7 of our civics class 8 understanding marginalization. First of all, we will read about the meaning of marginalization. So first of all, we will read the first paragraph of this chapter. What does it mean to be socially marginalized? मतलब अगर हम किसी को मार्जिनलाइज कर देते हैं, दैट मीनिंग इज किसी को सोसाइटी से अलग कर देना, उसको समाज से अलग देखना. To be marginalized is to be forced to occupy the side of fringe and thus not be at the center of things. मार्जिन आपकी नोटबुक के साइड में जो लाइंस होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग होती है अदर लाइंस से. दैट इज़ द मार्जिनलाइज्ड. दिस इज़ something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or film is different, if you accent marks you out from others, if you are less gentle than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right to acceptable to others. Means जब आप कुछ अपने आप को अलग देखते हैं सोसाइटी से, मीन्स आपके टेस्ट अलग होते हैं, आपके गेम्स, आपकी पसंद की मूवीज़, देन यू विल फील दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लास. एज इन द क्लासरूम इन द सोशल एनवायरनमेंट टू, ऐसे ही हमारी सोशल लाइफ में भी होता है. ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड. कई ग्रुप सोसाइटी में ऐसे हैं लोगों के जिन्हें लगता है कि वो अलग हैं सोसाइटी से, उनको अलग कर दिया जाता है. देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. और सोसाइटी में हम लोगों को किस बेस पे मार्जिनलाइज कर देते हैं? अदर्स पीपल, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी. हमेशा दो कम्युनिटीज़ होती है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी और एक लो कम्युनिटी होती है, जो अलग होती है, डिफरेंट कम्युनिटी होती है, जिसकी कम मेजॉरिटी होती है, यानी कि जिसका नंबर कम होता है सोसाइटी में. सो उसको हम लोग अलग देखते हैं अपने ग्रुप से. दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि वो गरीब है, कंसिडर टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड रिव्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स. तो अगर उनका नंबर कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है और उनके सोशल कस्टम अलग है, उनकी स्पीक लैंग्वेज जो है वो अलग है, देन दे आर कंसिडर्ड एज अ मार्जिनलाइज फ्रॉम द सोसाइटी. उनको हम सोसाइटी से अलग कर देते हैं और उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना या इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है अदर पीपल का. समटाइम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फेयर. This sense of difference and exclusion lead to communities to have access to resources and opportunity and in their inability to assert their rights. They experience a sense of disadvantages and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominated section of society who own land, are wealthy, better educated, and politically powerful. Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere: economic, social, culture, and political factor work together to make certain groups of society feel marginalized. In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in Indian society.
Socially marginalized people, they in common life they feel low because अगर आपको भी हम सोसाइटी से अलग कर देते हैं या आपके क्लासरूम में आपको पनिशमेंट दी जाती है, क्लास से अलग खड़ा कर दिया जाता है, आपके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं होता है, देन यू विल डेफिनेटली फील लो बिकॉज हमको तभी अच्छा लगता है जब हम सबके साथ सेम बिहेव किया जाए। तो मार्जिनलाइजेशन में एक सिंपल ग्रुप, कोई भी ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन कम है या फिर जो कोई ग्रुप ऐसा है जिसके सोशल कस्टम अलग है, तो आप सपोज योर फैमिली विल नॉट इंटरेक्ट विद देम, दे विल नॉट शेयर एनी religious or any other festival with them, so they automatically they will feel low, and because their population is not much as your population, so they will also exploited in some manner. So marginalization हम जो लोगों का कर देते हैं या हो जाता है सोसाइटी में, वो गलत है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे गलत बताया गया है। सो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज हैं इंडिया में। एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट 2 कम्युनिटीज़। वैसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं लेकिन बेसिकली हम 2 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दे आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज इन इंडिया टुडे। लेट्स रीड द स्टोरी। Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. Republic Day parade देख रहे हैं वो अपने दादा के साथ। Oh, see, an Adivasi float. Dadu, why do they always show Adivasi is as only dancing? तो बच्चों को रिपब्लिक डे की परेड में वो देखते कि आदिवासीज़ की ड्रेस अलग दिखाई जाती है, उनको हमेशा डांस करता हुआ दिखाया जाता है, उनके अटायर अलग होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं अपने दादू से कि वाई दे आर ऑलवेज शोइंग आदिवासीज़ एज ओनली डांसिंग, क्या वो सिर्फ डांस करने के लिए होते हैं? सो हिज दादू रिप्लाई, व्हेन आई वॉज यंग आवर विलेज इन उड़ीसा वॉज ब्यूटिफुल, वी गॉट एवरीथिंग वी नीड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, वी इन टर्न रिस्पेक्ट द लैंड, द फॉरेस्ट एंड रिवर। तो उसके दादू अब उसे अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपने गांव में रहते थे उड़ीसा में, जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे जंगल थे, खेत थे और उन्हें फॉरेस्ट से और रिवर से सब कुछ मिल जाता था जो उन्हें चाहिए होता था। देन सडनली इट वॉज नॉट आवर्स। Forest officially and contractors cut down a large part of it. If we protested, they beat us and then took us to court, where we did not have our lawyer and could not fight our cases. तो अचानक से एक लॉ आया कि आप लोग फॉरेस्ट से लकड़ियाँ नहीं काट सकते, ऐसे कुछ भी नहीं निकाल सकते। एंड अगर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया देन उनको उनके पिटाई हुई। दे आर बीटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड दे टुक देम टू द कोर्ट, और वहाँ पे उनके पास लॉयर भी नहीं था, दैट्स वाई दे कांट फाइट देयर केसेस। सो अगर उनका एक सोर्स था लाइवलीहुड का फॉरेस्ट, तो वो उस पर बैन लगा दिया गया, तो वो लोग अपना लाइवलीहुड कैसे स्पेंड करेंगे? देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू? फिर आपने कैसे काम चलाया? उसने अपने दादू से पूछा, फिर आपका कैसे आपने सर्वाइव किया ऐसी सिचुएशन में? देन द company wallas came. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised job and money. If we sold our land to them, some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave. Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby town. Then उसके दादू बताते हैं फिर वहाँ पर ये पता लगा कि उनके गांव के नीचे एक आयरन ओर है, यानी कि लोहे की खान है, जहाँ से जो कंपनी वर्कर्स थे, कंपनी वाले जो है उस लोहे को निकालना चाहते थे, और वो चाहते थे कि गांव वाले सब उनको उनकी ज़मीन और उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो उनको दे दें, जिसके बदले में वो उन्हें जॉब देंगे और पैसे देंगे। तो सम विलेजेस वर रेडी टू सेल देयर लैंड बट सम वर नॉट रेडी फॉर दिस. Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. तो
अब उनसे ज़बरदस्ती उनकी लैंड छीनने के लिए उनको मारा गया, पीटा गया एंड इवेंचुअली ये सब वो करने लगे, उन्हें डराने लगे, धमकाने लगे ताकि वो लोग अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें. दे हैड टू सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़. आवर होल वे इज लिविंग वेनिस्ड ओवरनाइट. और इस तरह से उन्होंने हमारा मतलब उनका पूरी तरह से उनका जीना दूभर कर दिया, जिस वजह से उनकी पूरी लाइफ और पूरा जो है उनका जो लाइफ का जो स्टाइल था, लाइवलीहुड था, वो पूरा एक ही रात में वेनिस्ड हो गया, ख़राब हो गया. तो वो पूछती है, ओ दादू एंड आवर लैंड वट, फिर हमारी ज़मीन का क्या हुआ? फॉर आवर 30 acre वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. आई नेवर सा मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स अगेन. तो बोलते हैं कि हमारे 30 एकड़ ज़मीन के लिए हमें बहुत कम पैसा मिला और उन कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने फिर कभी नहीं देखा. You can see that in this picture people were beaten by the company walas and the condition is not much good. The money hardly lasted in the city. फिर उसके बाद वो वहाँ से सिटी चले गए एंड जो सिटी में जो उनको पैसा मिला था ज़मीन का वो तो थोड़ा ही चला. वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर. और जब तक उसके दादू ने बताया था कि हम फॉरेस्ट से और अपनी फार्मिंग से अपनी अर्निंग करते थे, तो अब उनके पास सिटी में आके तो लाइवलीहुड का कोई भी सोर्स नहीं रहा. वी वर ऑल cramped into a tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open space. After few years, your father got a job in Delhi and we all moved there. Those were very difficult times. That is why both of you did not go to school for several years. दादू स्टोरी बता रहे कि उसके बाद हम सिटी गए, वहाँ पे हम सबको एक छोटे से रूम में रहना पड़ा और वहाँ पे हमने अपनी जो उनकी पहले की लाइफ थी, फ्री लाइफ थी, फॉरेस्ट की, अपने विलेज की, अपने फार्म्स की, वो बहुत मिस करी. अपना ओपन स्पेस बहुत मिस किया. और कुछ दिनों के बाद योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड फिर वहाँ पे हम लोग चले गए एंड वहाँ पे इस वजह से तुम्हारी भी कई सालों तक की पढ़ाई छूट गई. देन दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस विद देयर दादू दैट उस टाइम क्या हो रहा था. आई हेट गोइंग बैक टू स्कूल. वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस. वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी. तो वो स्कूल जाने के लिए मना कर रहे थे बच्चे. बिकॉज वाई, क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस छूट गया था और वो हिंदी नहीं बोलते थे, संथाली बोलते थे, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेस से आए थे. बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स. आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ. लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि हम थोड़े चेंज हो गए हैं. आई कैन, मेरे दोस्त भी हैं और मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेती हूँ. आई विश आई कुड शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I will make a movie on this story, our story, the Adivasi story. So this girl said that कि एक दिन मैं इस अपनी स्टोरी पे एक मूवी बनाऊंगी, दैट आदिवासी स्टोरी, कि किस तरह से उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और एक शहर में अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा. So by this story what you can understand that people are marginalized because they came from a different section, from a different place, they spoke different language, and how the life of people are destroyed by some government or some other people. You just read about how Dadu was forced to leave his village in Odisha. Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasi in India. You will read more about the marginalization in this community in this chapter. हम और भी स्टोरीज पढ़ेंगे कि कैसे कोई पीपल मार्जिनलाइज हो जाता है जब कोई किसी दूसरे प्लेस से आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड हु आर आदिवासी. आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी, द टर्म लिटरली मीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट. जो किसी प्लेस के ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं, मतलब वो कई सालों से वहीं पे रह रहे होते हैं, वो उन्हीं का प्लेस होता है, तो उनको हम कहते हैं आदिवासीज. मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट. आदि पहले से, वासीज मतलब वास करने वाले, आदिवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. ये वो कम्युनिटी होती है हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. जो जंगलों से जुड़ी होती है. ये लोग हर काम अपना जंगलों से, फॉरेस्ट से निकालते हैं. लाइक खाना पकाने के लिए फायरवुड, लकड़ी जंगल से लेंगे, फ्रूट्स, अदर थिंग्स लाइक एनिमल्स, हंटिंग, वो सब वो फॉरेस्ट से करेंगे. अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी.
इंडिया की 8% पॉपुलेशन आदिवासी है एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरिया, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग अदर्स। ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आदिवासीज रहते थे। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasis group in India. ये कोई एक ही पॉपुलेशन नहीं है कि आप होमोजीनियस बोलेंगे कि सब आदिवासीज एक ही टाइप के होते हैं। देर आर 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप, 500 अलग अलग तरह के आदिवासीज ग्रुप हैं इंडिया में। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमेरियस इन स्टेट्स, लाइक कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको आदिवासी, हर स्टेट में है और सबके अलग कस्टम और अलग लैंग्वेज है। सब आदिवासीज अलग अलग हैं। तो कुछ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। दीज आर सम स्टेट जहाँ पे आदिवासीज रहते हैं। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स मीन्स आदिवासीज रहते हैं। 60 ग्रुप मतलब 60 टाइप के आदिवासीज के ग्रुप वहाँ पे रहते हैं। Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from communities organized around principle of Jati Varna or those that were ruled by kings. तो वो हमेशा से अलग रहे हैं, हमारी सोसाइटी से अलग रहे हैं। उनमें ना तो जाति वर्ना होता था, ना ही कोई किंग होता था। Adivasi practice a range of tribal religion that are different from Islam, Hindu and Christianity. आदिवासीज का जो रिलीजन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो ना तो हिंदुइज्म, ना इस्लाम और ना क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। इनके जैसे नहीं होते। उनके जो कस्टम्स होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। These often involved the worship of ancestors, village and nature spirits. ये लोग किसकी पूजा करते हैं? अपने पूर्वजों की, अपने एंसेस्टर मीन्स पूर्वजों की, अपने गाँव की, विलेज की और नेचर की, यानी कि प्रकृति को पूजते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद द residing in various sites in the landscape, mountain spirits. हर चीज़ में ये लोग मानते हैं कि हर चीज़ में एक आत्मा होती है और उसकी वो पूजा करते हैं। जैसे कि माउंटेन स्पिरिट्स, पहाड़ की आत्मा, रिवर स्पिरिट्स, नदी, एनिमल स्पिरिट्स, इन सब की पूजा करी जाती है आदिवासी इस ग्रुप में। द विलेज स्पिरिट्स, यानी कि वो मानते हैं कि उनकी गांव की भी एक आत्मा है और वो उसकी भी पूजा करते हैं। द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रोव्स विद इन द विलेज बाउंड्रीज, while the ancestral ones are usually worshipped at home. So additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religion like Shakta, Buddhist, Vaishnav, Bhakti and Christianity. Simultaneously, Adivasis religions themselves have influenced dominant religion of the empire around them. तो अपने ही एरिया में वो डोमिनेट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तंत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम। ये लोग काफ़ी वैसे ग्रुप होते जो काफ़ी आगे होते, डोमिनेटेड ग्रुप हैं, जैसे कि जगन्नाथा कल्ट इन उड़ीसा में और शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल और असम में। ड्यूरिंग द 19th century substantial number of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. तो उस टाइम 19th century में बहुत सारे आदिवासीज़ को क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि इस टाइम एक नया मॉडर्न आदिवासी ग्रुप के रूप में देखे जाते हैं। Here you can see that these are the pictures of some Adivasis attire and people. Adivasis, their own language, most of them radically different from the possibly by old as Sanskrit, which has often deeply influenced the formation of mainstream Indian language like Bengali. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publication including magazine, on the internet or in e-zines.
मीन्स आदिवासी इतने पुराने इनकी कल्चर माना जाता है जितनी पुरानी हमारी संस्कृत लैंग्वेज है। मीन्स इनका ट्रेडिशन बहुत पुराना और बहुत ही अलग है। बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अगर कोई आदिवासी आपके स्कूल में या आपके एरिया में होता है तो आप लोग उनके साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट मार्जिनलाइज दीज पीपल बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। वो भी इंसान है एंड दे आर एज इक्वल एज यू आर। they are also have the rights of our constitution, our government, and they are also the people of our country, so we should not marginalize these people in our society. आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग। हम लोग आदिवासीज को स्टेरियोटाइपिंग मानते हैं, मतलब अलग। क्यों? वाई? इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासीज कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वे। हम उन्हें अलग तरीके का समझते हैं। दैट हम लोगों की एक पहले से ही इमेज होती है दैट आदिवासी हैं, दैट मीन ये पिछड़े लोग होंगे, मीन्स दे आर बैकवर्ड कम्युनिटी। बट ऐसा नहीं है। Thus, during school function of other official events or in book and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical way, in colorful costumes, headgears, and through their dancing beside this. We seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly led to people believing that they are exotic, प्रीमिटिव एंड बैकवर्ड। एक इमेज बन गई है लोगों के दिमाग में कि ये लोग बैकवर्ड होते हैं, एक्जॉटिक और प्रीमिटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लेक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज। You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particularly community can lead to people discriminating against such group. तो किसी भी के बारे में पहले से ही स्टीरियोटाइप अपने मन में एक वो बना लेना, एक थिंकिंग बना लेना, दैट इज़ रॉन्ग। आपने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से कम्युनिटी को स्टीरियोटाइपिंग बताकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, दैट इज़ रॉन्ग।